Any idea what about HTML list? Bullet. आप लोगों ने बुलेट देखा है, राइट? ऐसा होता है ना बुलेट. ये दिख रहा है 1 2 3. दिखा है 1 2 3 ऐसे बुलेट. Yes, sir. और ऐसे बुलेट, ये ऐसे बुलेट भी देखा है आपने. Okay. Yes, sir. This we called list in website. Web development में we called it as a list. If you say normal, there are two type of list. एक होता है order list, second होता है unorder list. एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ. जस्ट मिनट. काम आ जाएगा. जस्ट मिनट. Okay, I told you there are two type of list. One is order list and the second one is unorder list. Order list का मतलब क्या है? 1 2 3. रोमन नंबर देखा आपने, वो भी आ सकता है. ABCD. The thing which is ordered is the Roman number 1 2 3 ABCD. All are order list. Unorder list का मतलब bullets, अलग अलग symbols. Okay, these are called unorder list. I'll show you one video. Okay, that show you कि मैंने अपना ई कंटेंट बनाया आपको, आपके लिए. Just see that video, तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या होता है ऑर्डर लिस्ट. Can you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस भी दिखा रहा है, सुना रहा है? Voice low है, sir. Learner will learn the importance of list. Now they will learn Yes, sir. all the No, types sir, of it's list too low. and tables for designing. नहीं अभी आ रही है बात. Welcome to module 2. Okay. Welcome to module 2, list and table, week 2. Through this module, the learner will learn the importance of list and table. They will learn all the tags of lists and tables for designing a static website. Just a minute. In part 1, just a minute. Welcome to module 2, list and table, week 2. Through this module, the learner will learn the importance of list and table. They will learn all the tags of list and tables for designing a static website. In part 1, the learner will learn different types of list, different tags used in list and nested list. In part 2, learner will learn to insert table on web page, different tags used in tables, and how to create row span, call span, cell padding, and cell spacing. List, week 2, part 1. HTML offer designer several mechanisms for specifying list of information. HTML lists are used to present list of information in well-formed and semantic way. There are 3 different types of HTML list: order list, unordered list, and definition list. The first type of list is order list. If you're required to put your items in a number list instead of bullet, then HTML order list will be used. The list items are marked with numbers. The example shows order list. For order list, OL tag is used. For option, we have to use LI tag. The default order list is number.
We can also have alphabets or Roman numbers. To get order list in alphabet, we need to use attribute type in order list. Here, the examples show order list with type alphabet. The second type of list is unordered list. HTML unordered list or bullet list displays elements in bullet format. The list items are marked with bullet. Here the examples show unordered list. UL tag is used. The default unordered list is a disk. We can also have a circle or square. To get unordered list in square, we need to use attribute type in unordered list. Here the examples show unordered list with type square. The third and the last list is definition list. We can arrange our items in the same way as they are arranged in a dictionary. To start definition list, we need to use DL tag. DT tag defines the item in the list and DD tag describes the item in the list. Nested list. A nested list or a sublist is a list within a list. The trick to marking nested list up correctly in HTML is to recognize that the sublist is actually the child of a list item and not the list. The example shows nested order and unordered list. Thank you. हाँ गर्ल्स, कुछ समझा? Yes, yes. Yes, sir. कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से करेंगे हम लोग, इतना अर्जेंट नहीं है. यू वांट मी टू रिपीट वन मोर टाइम सेम और एक बार देखना वीडियो? फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा. Okay, sir. Okay, sir. Yes. और एक बार देखना. ठीक है, कोई बात. Welcome to Module 2, List and Table, Week 2. Through this module, the learner will learn the importance of list and table. They will learn all the tags of list and tables for designing a static website. In part 1, the learner will learn different types of list, different tags used in list, and nested list. In part 2, learner will learn to insert table on web page, different tags used in tables, and how to create row span, call span, cell padding, and cell spacing. List, week 2, part 1. HTML offer designer several mechanisms for specifying list of information. HTML lists are used to present list of information in well-formed and semantic way. There are 3 different types of HTML list: order list, unordered list, and definition list. The first type of list is order list. If you're required to put your items in a number list instead of bullet, then HTML order list will be used. The list items are marked with numbers. The example shows order list. For order list, OL tag is used. For option, we have to use LI tag. The default order list is number. We can also have alphabets or Roman numbers. To get order list in alphabet, we need to use attribute type in order list. Here, the examples show
order list with type alphabet. The second type of list is unordered list. HTML unordered list or bullet list displays elements in bullet format. The list items are marked with bullet. Here the examples show unordered list. UL tag is used. The default unordered list is a disk. We can also have a circle or square. To get unordered list in square, we need to use attribute type in unordered list. Here the examples show unordered list with type square. The third and the last list is definition list. We can arrange our items in the same way as they are arranged in a dictionary. To start definition list, we need to use DL tag. DT tag defines the item in the list and DD tag describes the item in the list. Nested list. A nested list or a sublist is a list within a list. The trick to marking nested list up correctly in HTML is to recognize that the sublist is actually the child of a list item and not the list. The example shows nested order and unordered list. Thank you. So, okay, girls? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके इतना क्लियर है कि देखो मैं स्लो जाऊंगा आराम से, कुछ इतना पता जल्दी नहीं हम लोगों को. लिस्ट बुलेट होते हैं, राइट? देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट. ओके, वन इज ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड द थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट. ओके, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग इसको. ओके, आई विल टेक वन नोटपैड. नया बनाते हैं. चलो आई विल स्टार्ट HTML. दिख रहा है आपको मेरा नोटपैड? Yes, sir. Yes, sir. टाइटल में देता हूँ मैं लिस्ट. टाइटल को क्लोज, देन आई क्लोज हेड, देन स्टार्ट बॉडी. बॉडी में डायरेक्टली अभी मुझे 5 फ्रेंड्स के नाम चाहिए ऑर्डर लिस्ट में. ऑर्डर लिस्ट तो OL बराबर. फॉन्ट का साइज बढ़ा रहा हूं मैं, यू कैन एबल टू सी. ऑर्डर लिस्ट के लिए OL. उसके अंदर ऑप्शन डालना है हमको, 5 फ्रेंड के नाम डालना है मुझे, तो LI. तो एक का नाम डालता हूं सपोज अनिल. क्लोज दैट. LI क्लोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट इट्स गुड हैबिट टू क्लोज. देन सपोज सुनीता. LI क्लोज. थर्ड वन सपोज कुमार. LI close. The fourth one is Anita. LI Rupesh. जो हो गया मेरा. I'll close this OL. This is the way to write order list. Okay, I'll close the body. I'll close the HTML. Okay, I'll save this. आपका जो फोल्डर मेरा कहाँ है, TYBCA बोल के है, right? In that I'll save as a list.html, and then I'll save this. Save. Okay, अभी अपना फोल्डर जाके ओपन करूंगा मैं. TY में लिस्ट राइट क्लिक करता हूं, ओपन एक्सप्लोरर. गर्ल्स, मुझे 5 फ्रेंड्स के नाम मिल गए मुझे. 1 2 3.
द डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट इज 1 to 1 2 3 ऑर्डर है। अगर आप बोलेंगे मुझे रोमन नंबर चाहिए या आप बोलेंगे मुझे एबीसीडी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे रोमन नंबर चाहिए, मुझे एबीसीडी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आई शो यू दैट। अगर आपको रोमन नंबर चाहिए, अगर डिफॉल्ट है तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी एट्रीब्यूट। अगर आपको डिफॉल्ट है तो ओएल का टाइप करो। अगर आपको रोमन नंबर चाहिए तो टाइप, और मैं यहाँ पे रोमन नंबर डालता हूँ ऐसे। रोमन नंबर कैसे आता है ये, क्या इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा? ये तो मैंने आई यूज किया, एक्चुअली टाइम्स न्यू रोमन में आता है ये, मैंने आई किया है। चलो सेव करता हूँ। क्या यूज किया मैंने? टाइप आई। चलो मैंने सेव किया, चलो रिफ्रेश करता हूँ। देखो रोमन नंबर 1 2 देखो रोमन नंबर आया। Yes, sir. चलो मुझे एबीसीडी चाहिए तो आई टाइप कैपिटल ए हियर। टाइप की जगह कैपिटल ए टाइप कर दो बस। ओके, चलो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो एबीसीडी आया। उसी तरह अगर आप स्मॉल एबीसीडी टाइप करेंगे तो स्मॉल एबीसीडी आएगा। अगर कैपिटल स्मॉल रोमन नंबर टाइप करेंगे जैसे स्मॉल आई, तो स्मॉल आई आएगा इधर, स्मॉल आई। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो स्मॉल आई। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। जहां अगर आपको नॉर्मल देना है तो ओएल करो, 1 to जो भी नंबर आ जाएंगे। अगर आपको उसके अंदर रोमन नंबर यूज करना है, एबीसीडी यूज करना है, तो आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज ऑर्डर लिस्ट। सेम वे अनऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? विदाउट नंबर, सिंबल्स। सेम मैं कॉपी करता हूं ताकि आई वांट टू शो यू दिस इन अनऑर्डर। फिर आपको यूएल यूज करना पड़ेगा, अनऑर्डर यूएल। यूएल यूज करेंगे आप, यहाँ पे भी यूएल बंद करना पड़ेगा। अभी रन करके देखते हैं हम लोग। फाइल सेम, सिर्फ मैंने यूएल यूज किया है, बाकी ऑप्शन सब सेम है। तो दिख रहा है कुछ सिंबल आया? Yes, sir. Yes, इस sir. सिंबल को डिस्क बोलते हैं हम लोग। ओके, डिस्क बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ लाइन ब्रेक देना चाहिए था, इधर एक दो ब्रेक, तो बीआर दे दो। तो लाइन ब्रेक देता हूं मैं, प्रॉपर लाइन पे, रिफ्रेश। ओके, लेफ्ट में आएगा वो, मैं बताऊंगा कैसे करते हो। अभी अनऑर्डर लिस्ट देख लिया आप लोगों ने। ओके, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अगर अनऑर्डर लिस्ट में ही अगर मुझे सपोज फाइल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम टाइप फाइल। द डिफॉल्ट इज डिस्क। बाकी आप ऑप्शन स्क्वायर दे सकते हैं। देखो स्क्वायर आया अभी। सेम वे और एक है सर्कल। सर्कल भी है हमारे पास। एल से एल रिफ्रेश, देखो सर्कल आया। उसी तरह डिस्क, देखो सर्कल भी आया, डिस्क भी आता है। मुझे लगता है कुछ मेरा ब्राउजर का प्रॉब्लम है इसलिए डिस्क नहीं आ रहा है। डिफॉल्ट इज डिस्क। हाँ, डिस्क डिफॉल्ट है। कोई फील्ड सर्कल आएगा, देखो दिस इज डिस्क। ओके, डिस्क। तो अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास तीन चीजें हैं, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क। डिफॉल्ट कौन सा था? सर्कल। अगर आपको चाहिए तो डिस्क हो सकता है, सर्कल दे सकते हैं या स्क्वायर दे सकते हैं। जिस तरह ऑर्डर में वी हैव एबीसीडी रोमन नंबर। आप बोलेंगे मुझे अलग सिंबल चाहिए, आपका सिंबल, ऐसे अलग अलग सिंबल्स है। अगर वो चाहिए तो वी नीड टू यूज फोटोशॉप फॉर दैट। वो बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको अप्लाई करना कैसे सीख लो, एंड देन विल गो फॉर अदर थिंग। पहले ये सिंपल आज सीख लेना आप लोग। चलो, द थर्ड लिस्ट ऑल्सो आई टेल यू कि कैसे होता है वो थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट यहीं पे बताता हूँ वर्ड में, ये सब नोट्स से मैं दूंगा। देखो डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन लिस्ट में कभी कभी क्या होता है, हमको बुलेट नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हमको ऐसा सिंबल चाहिए, ऐसा लिखा हुआ चाहिए,
और ऐसे डैश लिखा हुआ ऐसा कुछ चाहिए। लिखना चाहिए कि एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर एक सब हेडिंग है, तो मेन हेडिंग है, उसके अंदर एक सब हेडिंग है, हमको कुछ बुलेट बुलेट नहीं चाहिए। ऐसा है तो यू नीड टू गो फॉर डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए डीएल लिखना पड़ेगा आपको, कि डीएल से स्टार्ट होता है डेफिनेशन लिस्ट, और एनबी आपको /dl करना है। के बाद डीटी, डिफाइंड टर्म, मतलब हेडिंग क्या देना चाहते हैं आप, टर्म। डीटी का मतलब डिफाइंड टर्म, जैसे मैंने कॉफी दिया, देखो कॉफी तो लेफ्ट में आया। फिर बाद में डीडी, डेटा डिस्क्रिप्शन, तो टर्म के अंदर क्या चाहिए आपको, तो टर्म के अंदर आएगा, ये थोड़ा स्पेस छोड़ के आएगा ताकि दिखे कि वो अलग है, हेडिंग अलग है। फिर वापस मैंने डीटी दिया, मतलब दूसरा टर्म है ये मिल्क, उसके अंदर डीडी मतलब डिस्क्रिप्शन, उसका डेटा। ओके, यहाँ पे 3 टैग वी आर यूजिंग, वन इज डीएल, डीटी एंड द थर्ड वन इज डीडी। आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, डेटा लिस्ट करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हेडिंग डिफाइन करना है तो आपको डीटी, हेडिंग के अंदर आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है तो डीडी। क्लियरली मैंने एग्जांपल में दिया है। इज दैट क्लियर गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये डेफिनेशन लिस्ट है, ये भी ट्राई करना। अब ये 3 तरह के लिस्ट ट्राई करना है आपको। अभी हमारे पास टाइम है तो थोड़ा और आगे जाता हूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक नाम ऐसे डालना है बीच में, जैसे कुमार के बीच में, वो पहले ऑर्डर लिस्ट में मुझे अनिल के, कुमार के बाद मुझे कुछ लिखना है, मैंने कुछ लिख दिया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। रिफ्रेश करता हूं मैं, देखो कुमार के बीच में कुछ लिखा हुआ है, देखो ऐसा कुछ बीच में आ जाएगा। और देखो कंटिन्यू किया उसने 3 के बाद 4, क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने बंद नहीं किया, मैंने ओएल बंद नहीं किया। अगर मैं ओएल यहाँ पे बंद कर देता तो मेरा नेक्स्ट ये एल आई क्या होता, नया आता, 1 से स्टार्ट होता। इसका मतलब मैंने ओएल बंद नहीं किया, इसके लिए वो कंटिन्यू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओएल बंद कर देता, OL/OL करके, तो मेरा नेक्स्ट एल आई 1 से स्टार्ट होता। ओके, वो एक डिफरेंस बताना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आगे मैं नेस्टेड लिस्ट समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। उसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बीच में ब्रेक दे सकते हैं, ब्रेक करके कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, तो आगे वो कंटिन्यू रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होगा। सेम वे आप वर्ड में भी काम करेंगे तो ऐसे होता है, आप एक बुलेट ऑफ कर देते हो तो नेक्स्ट बुलेट तो आता ही है ऑटोमेटिकली। अगर आप एक नंबर ऑफ कर देंगे बुलेट का तो नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली नंबर देता ही है। सेम वे यहाँ पे भी। क्लियर गर्ल्स? Yes, sir. चलो मैं चाहता हूँ कि आप इतना प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट लेक्चर पे तुमको मैं सिखाऊंगा नेस्टेड लिस्ट। लो जाएंगे आराम से। कुछ डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है? No, sir.